Hello students, welcome back to today's class. In the last topic we talked about what chemical bond is, and we explained the causal-Lewis approach to the formation of chemical bond also. Then in the last we talked about the chemical bond, how chemical bond is formed. There are two methods. One method is the transfer of electrons, and by the help of transfer of electron we form ionic compounds, right? Yeah, ionic bond is formed. Now what ionic bond is you have come to know. Now we will talk about that where is ionic bond, where is ionic bond formed, कि कहाँ बनता है ionic bond. Answer to this question is कि if you take care about the formation of chemical bond, you will come to know that first step is the loss of electron, and second step is gain of electron, and third step is attraction between the ions. It means you require two kind of elements. One element which lose the electron, second element which gain the electron. It means one element lose the electron and one element gain the electron, right? The element which lose the electron is called metal, means what you require is a metal, and second which gain the electron is your non-metal, means ionic bond is formed between metals and non-metals. Metals will lose the electron and non-metal will gain that lost electron, right? So if you talk about ionic simple properties of ionic compounds, properties of ionic compound, some of the properties you have done in class 10th also, like physical state. Most of the time they are found in the solid state, and they have melting point and boiling point. Melting point and boiling point, वो क्या होता है? हाई होता है. हाई क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग force of attraction between cation and anion. Because forces of attraction are strong, it means when you will try to melt it or boil it, you will require a higher energy to overcome that force of attraction. ठीक है ना? क्योंकि जब चीज़ों का आप मेल्ट करते हैं या बॉईल करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करते हैं. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो गया तो सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा. और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हुए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे. ठीक है. Second property if I talk about is these are insulator in solid state, but conductor in liquid state. Why? Because in the liquid state ions are free to move. Ions are free to move. When ions are free to move, it means charge can move. Charge can move. When the charge move, we say that current is passed. ठीक है ना? करंट को पास अगर आप याद करें क्लास 10th जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस मूवमेंट ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. तो चार्ज यहाँ पर किसकी फॉर्म में मूव करेगा?
आयंस की फॉर्म में. आयंस आर फ्री टू मूव, इट मीन्स चार्ज कैन move, and when the charge move, then it is your conductor. Insulator in solid state, if I am to explain this, then it means that cations and anions in the solid state, they attract each other very strongly. It means it means that they will have a, when I say insulator in the solid state, it means cations and anions strongly attract each other and they are not free to move, and as a result they are insulator. Okay, and moving on to the property third property which we have is that is your that they are hard but brittle. दिस इज द क्रूशियल पॉइंट कि हार्ड है बट ब्रिटल है. हार्ड बाय हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन cation and anion. ठीक है. Now if I'm to explain brittle, then what happens is, let me have a ionic solid A having positive charge, similar way B having negative charge, again A, B, A. Always remember that these are at the alternate positions. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो सके, क्योंकि फिजिक्स हमें सिखाती है दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो यहाँ बी ए बी ए बी ए बी so this is the ionic solid I have. Now what happens if I apply some force? If I apply some force applied, then what will happen? कि जैसे ही फोर्स जाएगा तो ये थोड़ा सा खिसक जाएंगे. ठीक है. अब इसको समझ लेते हैं कि इससे क्या हो गया. देखो, जो चीज़ जहाँ है वहीं रखनी है. राइट. देन व्हाट हैपन्स हियर इज दैट यहाँ पर क्या थे? अपोजिट आयंस. ठीक है. अपोजिट आयंस वो क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे. बट आफ्टर एज द फोर्स इज अप्लाइड हेयर, तो ये जब लेयर आगे मूव करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेम आयंस कम क्लोज टू ईच अदर. कि वो एक दूसरे के क्या आ गए? क्लोज आ गए. देखो ना, यहाँ पर ए के पास आ गया तो सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. इट मीन्स दे विल रिपेल करने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड दे विल बिकम ब्रिटल. सो दिस वर योर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स. 3 प्रॉपर्टीज़ की हमने बेसिकली बात की. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार ये भी देख लेते हैं. हमने बात की किसकी? हमने बात की पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड हमने बात की कंडक्टिविटी की कि इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट. वाई? बिकॉज cations and anions strongly attract each other. Ions are not free to move, and till the ions don't move, the charges will not move, and we will say that it is insulator. But in the liquid state, ions are free to move. Then
हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन यू अप्लाई फोर्स, जब वो लेयर मूव करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सेम आयंस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने जब कहा था, हमने जब बात की थी किसके बारे में, अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के हमने दो तरीके कहे। पहला जिसको हमने कहा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बना, आयनिक बॉन्ड बना। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड इज योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लॉस्ट, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, नहीं, वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, व्हेन शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा तरीका हुआ। लेकिन ये जो शेयरिंग होगी ये दो तरीके की हो सकती है। पहली पहली जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शेयरिंग, शेयरिंग बट नॉट म्यूचुअल। ठीक है, कि शेयरिंग तो है बट म्यूचुअल नहीं है। इसका देखो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि म्यूचुअल का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन। जैसे जो बच्चे फेसबुक चलाते हैं उनको पता होगा, कई बार फेसबुक ओपन करते ही वहाँ पर आता है पीपल यू मे नो। वहाँ पर कोई एक प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में वो लिखा आता है कि इतने कॉमन फ्रेंड। मतलब म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया, कॉमन, कि जो आपके पास भी है और उनके पास भी है, वो आपके लिए क्या हो गए, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ठीक है, म्यूचुअल मतलब, म्यूचुअल स्टैंड्स फॉर कॉमन, कि यहाँ पर शेयरिंग तो होगी लेकिन वो क्या होगी, कॉमन शेयरिंग होगी। कॉमन शेयरिंग कैसे, कि इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, क्या, दैट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन वी रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग करते टाइम आपको एक बात पता होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आर required for bond formation, कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, यही हमारे पास शेयरिंग है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक है, दिस इज अ पर्सन। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आपके पास एक और पर्सन है जिसके पास फिर से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और यहाँ से क्या बन गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, देयर इज अ बॉन्ड। ठीक है, ये क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स के these 2 electrons, or I can say, or the 2 electron in the bond are from each element। 2 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड कहाँ से आए, वो आए 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एलिमेंट। ठीक है, मतलब हर एक में से कॉमन है। जब इस टाइप का बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है, देन जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि व्हेन bond is formed, when bond is formed by mutual sharing,
mutual sharing of electrons, or I can say the two electron required for bond formation is given by bonded electron by the elements equally. या 2 electron required for bond formation is given by elements equally, means both elements give 1 electron each for bond formation. ठीक है कि भाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जिन 2 एलिमेंट के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है, दोनों क्या करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कहाँ बनता है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज formed between two known metals। कि दोनों की दोनों कैसे होनी चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कैसे देखें, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो उसी नॉलेज का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक टर्म और हम सीख लेते हैं, कोवेलेंसी। पिछले लेक्चर में हमने टर्म सीखी थी वैलेंसी। वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंसी मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स between the elements to form covalent bond। ठीक है, and this covalency is equal to valency predicted by Lewis symbol। ठीक है, प्रेडिक्टेड बाय लेविस सिंबल। याद है ना कि अगर वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है या 4 है तो वैलेंसी इज इक्वल टू 1 2 3 4, जितने हैं उतने। अगर 4 से ज़्यादा हो गए तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कोवैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और अपने साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं एक बार और ड्रॉ करूं, और आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, थोड़ा सा बड़ा करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ने क्या किया, कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है भेज दिया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons are under the force of attraction of two nucleus of each hydrogen। ठीक है ना, कि ये 2 न्यूक्लियस है। 2 न्यूक्लियस कैसे हैं,
दो न्यूक्लियस कैसे हैं, इस बात को भी अगर मैं समझूं तो देखो, ये हाइड्रोजन है, इसका एक न्यूक्लियस होगा, ये हाइड्रोजन है, इसका भी एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन वैसे भी देखो ना कॉमन एरिया में है, मतलब ये इस सर्कल का भी हिस्सा है और वो इस सर्कल का भी हिस्सा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कराएगा और ये हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कराएगा, इसलिए हम कहते हैं कि शेयर्ड बाय बोथ, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कहाँ से पता चली थी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी इज 1, या कोवैलेंसी भी कितनी है, 1 है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, लेट्स टॉक अबाउट योर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका सिंबल देखें, इसके पास 5 डॉट्स आएंगी, ऐसे ही इसके पास भी कितनी आएंगी, 5 डॉट्स आएंगी। जब 5 डॉट आएंगी तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो 8 माइनस 5 वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन will be shared, will be shared by each नाइट्रोजन। ठीक है, कि हर एक नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखो कि ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, इसके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 उसने शेयर कराए, 1 2 एंड 3। ऐसे ही 3 इसने शेयर कराए, 1 2 एंड 3। अब इसके पास 2 बच गए, इसके पास भी 2 बच गए, मतलब 5 में से सिर्फ 3 शेयर कराए और 2 2 उनके पास बच गए, यानी कि इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर। फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो से दैट like there are 6 electron which are used for sharing, or I can say which are used in bond formation, and in the starting I have told you that 2 electrons are required for bond formation. It means 2 electron shared, if 2 electrons shared it means one bond formed, one bond formed. If 4 electrons shared it means 2 bonds are formed, and if 6 electrons are shared it means 3 bonds are formed. So there may be a single bond, there may be double bond, or there may be triple bond also. So this is about your covalent bond. I repeat what covalent bond is, that second method of formation of bond is sharing of electron, and the important point here is 2 electrons are required for bond formation. Sharing may be of two types, mutual sharing and sharing but not mutual. Now what happens is, if the 2 electrons required for the bond are given by 1 electron each by the elements, then the bond formed is called covalent bond. ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. Now this covalent bond मतलब 2 electrons required for the bond formation and given 1 electron each by the bonded atoms. ठीक है, कहाँ बनेगा ये बॉन्ड, नॉन मेटल्स के बीच में. यहाँ से एक और नई टर्म हमने निकाली, कोवैलेंसी. कोवैलेंसी मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एलिमेंट्स टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड. अब कोवैलेंसी को कैसे प्रेडिक्ट किया, कोवैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंसी प्रेडिक्टेड बाय लेवे सिंबल. लेवे सिंबल याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4, तो वही वैलेंसी होती थी. तो यहाँ पर वही कोवैलेंसी, मतलब जो वैलेंसी थी उसको मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, कोवैलेंसी. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल हमने किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना. अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दीज आर शेयर्ड बाय द टू डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ नाइट्रोजन शेयर. ठीक है, तो यहाँ पर भी वैलेंसी हमने निकाल के दिखाई. There may be single bond, double bond and triple bond. Now we have one more method of sharing but not mutual. I know that 2 electrons are required for the bond formation,
बट अब तक क्या था कि जिनके बीच में बॉन्ड बनाना था दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, एक आपके पास ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है विच इज़ नॉट हैप्पी. वाई ही इज़ नॉट हैप्पी? बिकॉज डू नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन, डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा हूँ? जिससे ये बॉन्ड बना सके. डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन जिसका यूज़ करके ये बॉन्ड बना सके. लेकिन एक दूसरा एलिमेंट है विच इज़ एक्स्ट्रा हैप्पी. वाई एक्स्ट्रा हैप्पी? कि ये कहता है कि भाई मेरे पास कितने हैं, it has two electrons which it can share for bond formation. Now what happens is कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और दोनों आपस में बेचारे खुश हो जाएंगे. बॉन्ड फॉर्म्ड. ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया. लेट मी से दिस इज ए एंड दिस इज योर बी, कि इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, ए. अब इसमें से यहाँ जो बॉन्ड बना है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड belongs to A, sorry, belongs to B, but shared by both. ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड को, कि भाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक के हैं लेकिन शेयर दोनों के बीच में हुए. ठीक है, तो इस टाइप की शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कि शेयरिंग तो है बट म्यूचुअल नहीं है, कि भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है. तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे. हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड की करने वाले हैं. ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड से आगे अगर हम बढ़ें, सो we are talking about the covalent bond, how covalent bond is formed. Now we will talk about Lewis dot structure. लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, क्लास 10th में आपने पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये वही है जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये वो ही है. बस इसको अब लेविस सिंबल हमने बता दिया तो इसलिए उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं. ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं आपको एक्सप्लेन करूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा कि भाई ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराया तो मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स लगा दी. ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, N2. ये एक नाइट्रोजन, दिस इज़ द सेकंड नाइट्रोजन वी हैव. तो दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराए थे, 6. याद है आपको, पीछे हम कर चुके हैं. देयर वर 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड. अगर मान लो आपके पास आ जाए CO2, ठीक है, क्या आ गया, CO2. अब यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है भाई, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर ये जो 2 ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़े होंगे, कार्बन के साथ जुड़े होंगे. आई नो दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4. कैसे पता चला भाई, एटॉमिक नंबर देखो ना कितना है, 6 है. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हैं. तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. जबकि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है. कैसे पता चला, 2 एंड 6, 8 एटॉमिक नंबर है. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. तो वैलेंसी कैसे निकली होगी, 8 - 6. वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 6, मतलब कितनी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा ये.
ऑक्सीजन को शेयर कराने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन को शेयर कराने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। इसका मतलब है कार्बन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएगा। तो हमने क्या किया, सेंटर पे लिखा कार्बन, ठीक है, ये बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस तरफ और एक ऑक्सीजन ही इस तरफ। तो कार्बन ने क्या किया, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, तो कार्बन की भी वैलेंसी पूरी होगी। अब ऑक्सीजन के डॉट सिंबल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कितनी डॉट्स आएंगी, 4 आएंगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का डॉट सिंबल देखो क्या था, ऑक्सीजन का डॉट सिंबल वाज कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देयर वर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 6 डॉट हमें लगानी थी। इन 6 में से 2 तो यूज़ कर ली, तो 4 तो इसी के पास बच गई, ऐसे ही 4 इसके पास बच गई। क्या ऑक्सीजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, आंसर इज़ नो, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के 4 शेयर हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ द लेविस डॉट सिंबल। ऐसे मान लो आपको किसका बनाना हो, आपको बनाना हो NH3 का, अमोनिया का अगर बनाना है तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 5, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी इज़ 3, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, यानी कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, जबकि हाइड्रोजन की कैपेसिटी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की है, यानी कि एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ सिर्फ मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो देखो नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज योर सेकंड हाइड्रोजन एंड दिस इज योर थर्ड हाइड्रोजन। तो सबके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, ये हो गए। अब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने थे, 5, 5 में से 3 शेयर हो गए, 2 उसके पास अब भी बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जिनको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का दूसरा अल्टरनेट नेम होता है ऑल्सो नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मीन्स bonded electrons are those electrons which are shared or used for bond formation, कि जिनका हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नॉन बॉन्डेड या फिर और लोन पेयर, ठीक है, वो क्या होंगे, विच आर नॉट यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो नहीं यूज़ हुए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर। जैसे नाइट्रोजन के पास, अमोनिया के पास, इसमें एक लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये किसके लिए है, फॉर नाइट्रोजन, बोथ आर फॉर नाइट्रोजन। ऐसे ही अगर मान लो मुझे ऑक्सीजन का केस करना हो कि फॉर ऑक्सीजन लोन पेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर कितने हैं, 2 हैं भाई, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 पेयर है ना। और बॉन्ड कितना है, बॉन्ड पेयर आर ऑल्सो 2, ठीक है। एक पेयर में डोंट फॉरगेट, सॉरी, बॉन्ड पेयर इज 1, नो सॉरी इट्स 2, क्योंकि 4 है ना, 4 मतलब 2 पेयर बन जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर आर 2। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर लिए, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, पहला बॉन्ड पेयर और दूसरा
नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर। अब थोड़ा सा मूव करते हैं कि हमने एक बात की इसी आर्टिकल में शुरू किया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बट लेविस डॉट स्ट्रक्चर से इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लिमिटेशन क्या है वो देख लेते हैं। पहली जो लिमिटेशन है कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता स्ट्रक्चर को। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, यानी कि नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन। लेकिन ये कैसे जुड़े हुए हैं? क्या ये ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना? क्या फिर ये ऐसे जुड़े हुए हैं? कहोगे सर इन दोनों में से फ़र्क क्या है? फ़र्क है ना, देखो भाई यहाँ पे तो एक टी शेप बनती है, या फिर यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना है, 90 का है, यहाँ पर एंगल 90 का नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा जो है, डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कि भाई जो आसान है उनको तो हम बना सकते हैं इस अप्रोच से, लेकिन जो मुश्किल है उनको नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है HNO3 में अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। जैसे यहाँ हमने कहा था ना कि भाई किससे चीज़ें जुड़ी हुई थी, नाइट्रोजन से, यहाँ किससे जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन से। कैसे पता चला भाई, कार्बन यहाँ एक था फॉर्मूले में, 2 ऑक्सीजन थे, तो इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे। ऐसे ही एक नाइट्रोजन था, 3 हाइड्रोजन थे, तो मुझे पता था कि भाई 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े होंगे। लेकिन अगर मेरे पास HNO3 है, यहाँ हाइड्रोजन भी एक है, नाइट्रोजन भी एक है, आई कैन नॉट से कि चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to remember that that what is exact connectivity, what are exact connections, कि कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ी हुई है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ योर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन तो हमें समझ आ गई कि भाई ये लिमिटेशन है, लेकिन क्या इसका कोई बेनिफिट भी है? आंसर इज़ यस। यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकालते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी पीपल कॉल इट एज फॉर्मल चार्ज। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज। अब पहला तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल चार्ज है ही क्या। तो देखो, जैसे आप पढ़ चुके हैं कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव। जैसे आप पढ़ चुके हैं सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन को मिलाकर उनके ऊपर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। लेकिन किसके ऊपर कितना है, टोटल पता है, टोटल इज 2 नेगेटिव, लेकिन किसके ऊपर कितना है, क्या ये 2 नेगेटिव सल्फर के ऊपर है, क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर है, या फिर अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर है तो 4 में से वो कौन से 2 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर ये चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो फॉस्फेट है मेरे पास PO4 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन पर मिलाकर टोटल नेगेटिव चार्जेस 3 नेगेटिव, लेकिन उस 3 नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, भाई फॉस्फोरस के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास कितना है, क्या फॉस्फोरस के पास है भी या नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज से। एक्चुअल में देखें, अगर आप लेके चलते हैं CO2 तो न्यूट्रल है,
ठीक है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर CO2 के ऊपर चार्ज नहीं है तो क्या इसके अंदर कभी चार्जेस नहीं होंगे? आंसर इज नो, चार्जेस होते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि CO2 क्या है? CO2 इज न्यूट्रल, CO2 इज न्यूट्रल, but it doesn't mean that it carries no charge. Here amount of negative charge is exactly equal to amount of negative charge. Sorry, amount of negative charge is exactly equal to amount of positive charge. ठीक है ना, इसलिए ये क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज है क्या? फॉर्मल चार्ज इज एक्चुअली, फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड एज डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन valence shell electron and number of electrons assigned in Lewis structure. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। या फॉर्मूला अगर आपने इसका निकाले, दैट फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल number of non-bonding electron minus half of total shared. This is the formula which is given in the book. But for me, the easy method to remember this is that formal charge is equal to valence shell के electrons, उसको मैं represent करता हूँ V से, minus lone pair या non-bonding electrons, माइनस कर दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के जिसने जितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, सॉरी बॉन्ड बनाए, उसको आप क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे अगर मान लो कोई आपसे कहे कि भाई लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालो, किसका? H2SO4 का, या फॉर्मल चार्ज ऑफ H2SO4 निकाल के दिखाओ। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टेप वन ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर आपको लिमिटेशन याद है लेविस डॉट स्ट्रक्चर की, लेविस डॉट स्ट्रक्चर does not explain the structure of the complex HNO3, you will have to remember what are the exact connections के कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही केस किसका है? ऐसे केस है H2SO4 का। H2SO4 में भी आपको याद रख के चलना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें किसके साथ जुड़ी हुई है। तो देखो, जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने एक इसके साथ शेयर किया, टोटल थे उसके पास 6, उसमें से एक उसने सल्फ़र के साथ शेयर किया, सल्फ़र के पास भी टोटल थे 6, OH। ठीक है, एक ऑक्सीजन मैंने लिखा नीचे और एक ऑक्सीजन मैंने लिखा ऊपर। ठीक है, अब इसकी कनेक्टिविटी ध्यान से देख लो कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। ठीक है, चीज़ें जुड़ गई। अब सल्फर की तरफ ध्यान दो, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है कि भाई एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से और 4 इसके पास वैसे पड़े हुए हैं कि 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। सल्फर के बारे में सोचो कि सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये ऑक्सीजन तो जुड़े नहीं अभी तक, अगर नहीं जुड़े तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बना लें,
यानी कि इस बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 थे, 6 अब भी हैं, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में यूज हुए वो किसके हैं? सल्फर के हैं। तो यानी कि ये जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड है। और डेटिव बॉन्ड या फिर इसका दूसरा नेम क्या है? अल्टरनेट नेम इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर आप नोट डाल सकते हैं, नोट कि if octet of any element is satisfied, then it forms only covalent bond, sorry, coordinate bond। कि अगर इसका एक बार ऑक्टेट पूरा हो गया और इसके बाद भी ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड हमेशा कैसा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या डेटिव बॉन्ड होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यूज़ होंगे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। और डेटिव बॉन्ड की नोटेशन एरो ही होती है। डेटिव बॉन्ड इज़ द सेकेंड नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसको नंबर देता हूँ HA HB, ठीक है, A और B मतलब 2 अलग अलग हाइड्रोजन। अगर मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन या HA, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? देखें, हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फॉर्मूला इज वैलेंस शेल माइनस नॉन बॉन्डिंग, वैलेंस शेल माइनस नॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये मेरे पास फॉर्मूला है तो देखो, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 माइनस, क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके पास कोई लोन पेयर बचा है? कहोगे सर नहीं बचा। नहीं बचा तो एल की जगह क्या आ जाएगा? 0 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है इसने, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 0। सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली HB फॉर्मल चार्ज विल बी 0, कि HB के ऊपर भी कितना आएगा? 0 आएगा। नाउ आई कैन से फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए किसको कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसको A, दिस इज ऑक्सीजन B, दिस इज ऑक्सीजन C, और ऐसी ऑक्सीजन D। ठीक है, ABCD। तो ऑक्सीजन A का भी फॉर्मूला लिख लो, वैलेंस शेल माइनस लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 माइनस लोन जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए वो टोटल कितने हैं? 1 2 3 और 1 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 बॉन्ड तो इस तरफ है इसका और 1 बॉन्ड इस तरफ है, यानी कि बॉन्ड्स आर 2, तो 6 माइनस 6 ये क्या आ जाएगा? 0, यानी कि इस ऑक्सीजन पर कोई किसी तरीके का चार्ज नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन B इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन C, के ऑक्सीजन C पे फिर से फॉर्मूला तो वही होगा, वैलेंस शेल में 6 माइनस बॉन्डिंग में कितने यूज़ नहीं हुए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, माइनस 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, माइनस बॉन्ड कितना है? 1 है ना, भले ही वो डेटिव है लेकिन बॉन्ड तो है, 6 माइनस 1, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया? -1 का चार्ज आ गया। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन D वो भी कितना आएगा? -1 आ गया। 2 ऑक्सीजन पर मिलाकर कितना नेगेटिव आ गया? -2 का आ गया। अब निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर 6 माइनस, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए? ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये 2 भी यूज़ हो गए, ये 2 भी यूज़ हो गए, तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो हमारे पास क्या हो?
नॉन बॉन्डिंग हो। तो 6 - 0। अब इसके पास देखो कि बॉन्ड कितने हैं इसके। बॉन्ड्स आर 4। कैसे? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल बॉन्ड्स आर 4। 6 - 0 - 4 इट मीन्स +2। भाई सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है? +2। और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डी और सी पे मिला के -1 इस पे -1 इस पे, यानी कि -2 का चार्ज है। और ऐसे ही -2 को बैलेंस करने के लिए सल्फर के ऊपर कितना है? +2 का चार्ज है। So this was about your formal charge, and this is all for the day. Next time we will meet with some more examples of formal charge. Till then, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं next time.